Hosanna in the highest. Hallelujah. Hallelujah. Just want to worship the Lord. Hosanna to the King of Kings. Hosanna in the highest. Just want to welcome you all in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो हमारे साथ है और जब हम उसको पुकारते वो सुनता है। आज जैसे पाम संडे है, हम लोग याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट एंट्री इनटू जेरूशलम बिफोर हिज डेथ, उसके डेथ और रेजरेक्शन, एक्चुअली उसके रेजरेक्शन के बाद में कई बार वो जेरूशलम आया और वहाँ पर था, गैलरी में भी था और all these places. But this is the last time that he enters Jerusalem before his death. और यहाँ पर ये जो घटना हुआ, it actually showed प्रभु यीशु मसीह पब्लिकली डिक्लेयर किया कि वो कौन है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और जिसके विषय में भविष्यवाणी हुआ था, जिसके विषय में लिखा हुआ था, वही प्रभु यीशु मसीह है। वो काम करने के लिए आया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। जब हम लोग देखते हैं जेनेसिस की किताब में, जब एडम और ईव पाप किया था, परमेश्वर ने तय किया था, परमेश्वर ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा, पाप से छुटकारा देगा। और वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। शायद उस समय में नहीं लिखा था, लेकिन जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और था और रहेगा जो हमें पाप से छुटकारा देने के लिए। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। And just want to wish you all a very blessed Palm Sunday. इस समय हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for everything that you have done for us, Lord. Thank you for this beautiful day, oh God Almighty, that you have given us, Lord, that we can worship you, Lord. We come into your presence, Lord, remembering what you had done, oh God Almighty, even knowing what you were going through, oh God Almighty, in future, Lord. We just want to thank you, Lord, that you looked at us, you looked at yourself, and looked at the Heavenly Father. And you made a choice to reconcile us to our Heavenly Father. And this afternoon, we just want to thank you for it, Lord. Father, I pray for each and every person that is here in church, Lord. I pray for your blessing upon them, oh God. In Jesus' name, and those that are watching online, oh God Almighty, I pray for your blessing upon them too, oh God Almighty. In Jesus' name, bless your children, oh God Almighty. As we come before your throne of grace, Lord, we ask for forgiveness, Lord, as we stand before you, Lord, to worship you in spirit and in truth, Lord. Let it be like a sweet fragrance unto you, God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name I pray, Lord. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Amen. Thank you, Lord.
to the King of Kings. मेरे बत्ती में तेल दे दे यीशु, तेरे आने तक मैं तू ज्योति. Hallelujah. We worship you, God Almighty. We thank you, Jesus, for loving us so much, Lord. Thank you, Father.
वहां से। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। हम लोग कभी कभी ऐसे समस्या में हो जाते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, और हम लोग के वहीं से हम लोग की सहायता मिलता है। जैसे डेविड ने कहा साम 121 में कि मैं अपने आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मेरा मदद आता है। मेरा मददगार जो परमेश्वर है, और तुम्हारा भी मददगार वो परमेश्वर है, वो आज भी तुम्हें मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो विजय दिलाएगा तुम्हें। He will fight your battles, but the victory is yours. No matter what happens, just worship Him. जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब उसकी स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर, we bring actually heaven down. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We worship you. लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा हो, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे मुड़े, खुदावन करूब फरमाता है। बड़े बड़े न पीछे मुड़े, खुदावन करूब फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा हो, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, कि लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा, तुझसे भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा हो, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है। यीशु का लहू जो हमें हर एक गुनाह से हमें धोकर साफ करता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, जैसे हम इस ईस्टर के समय, इस आज जैसे पाम संडे, हम लोग याद करें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। बाइबल हमें बताता है, जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, when we
look upon Jesus, when we remember what He has done for us, and we take part in that communion, we are accepting, we are acknowledging what Jesus has done for us, and we bring blessing upon ourselves. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा ये काम करते रहना। तो हम लोग याद करते रहे प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीबी से यीशु पाके रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीबी से यीशु पाके रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। नदियों में जांचो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है हमको रिहा, करता है हमको रिहा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीबी से यीशु पाके
लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुआ, वो हमें धोकर साफ किया। इससे इस बाइबल कहता है कि white as snow. Hallelujah. We thank you, Jesus. We worship you, God Almighty. We give you all the glory and honor, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We thank you for everything that you have done for us, Lord. Oh, hallelujah.
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमसे बातचीत कर प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु, हमसे बातचीत कर, तू बदल दे मेरे मन को, आशीष दे इस जीवन को प्रभु। हालेलुया, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला। हालेलुया, यही हम चाहते हैं प्रभु, आज हमारा यही प्रार्थना है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर, तू महान है। हालेलुया, हालेलुया, we worship you Jesus, we worship you Lord। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Raise your hands and worship him। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया जीसस, तेरा ही नाम ऊंचा रहे प्रभु, तेरी नाम के जय जयकार करते प्रभु। Hallelujah. I come against every bondage in Jesus' name.
I break every bondage in Jesus' name. Your word declares, Lord, whom the Son has set free is free indeed. And I declare freedom in Jesus' name. Hallelujah. Whether it be sin, financial, or health, I just commit everything into your hands right now in Jesus' name. I commit every person into your hands right now in Jesus' name. Hallelujah. You suffered and died for us, so Lord Jesus. You took all our sins upon that cross, Lord. We thank you, Father, in Jesus' name, for healing us, Lord, for restoring what was stolen from us, oh God Almighty. Father, we thank you, Lord, for setting us free in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We worship you, Lord. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. You may be seated. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से और हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. And it's good to see so many people in the house of the Lord to worship Him. Amen. He is a great God. These last few days I've been spending some time in prayer and asking the Lord's guidance. And the Lord has showed me a lot of things that He's going to accomplish through this church. Now that most of these restrictions are being lifted up, the Lord is going to do great things. And this afternoon, I just want you all to pray and ask God to anoint you, to release the power of the Holy Spirit upon you. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. When you come to praise and worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, the devil flees. He cannot stand the worship of God. He cannot stand the praises of Jesus. So in order to make the devil flee, you need to worship Him. You need to spend time in prayer. You need to spend time in praising God, and the devil will flee. Your sickness, your diseases, whatever it is, it will go in Jesus' name, because the Lord said so, and He is going to do it for you. This is not my word today. This is what the Holy Spirit has put in my heart to share with you. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father, that your word will come to pass, God Almighty, in Jesus' name. Amen. इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के प्रचारक है भाई इज़ेकियल. Normally I do the preaching especially on around Easter weekends, but this is going to be different. Amen. Hallelujah. Let's welcome him. Praise the Lord. कल जैसे जनता एक वैंकूवर वाइट कैप से गेम रहा, तो हमें स्टेफनी का डेट भी लेके जाए के रहा. तब हमें मिल गए फ्री टिकट. तब फ्री टिकट मिल गई जब हमें, हम वहीला चपका दिया, उसके लेके चल दिया वहीला लेके डेट नाइट पे. डेट नाइट और अच्छा हो गया बिकॉज हमें पे नहीं करेगा पड़ा. तो हम लोग सब कोई फ्री चीज़ लाइक करता है ना. कभी कभी कोई कुछ फ्री मिल जाए, ऐसे हम लोग जाता. अगर कहीं पर बाय वन गेट वन फ्री डील रहे, तो अगर हम लोग के एक भी ज़रूरत है, हम लोग दोनों लेके आता ना, बिकॉज फ्री ला इट ऑलवेज टेस्ट बेटर. तो आज के जो नवा मैसेज है, इट्स समथिंग अलोंग दैट लाइन. जनता है काफ़ी जन अब जान गई से कि हम मैसेज कहाँ लेके जाता है.
तो आज जैसे पाम संडे है, तो हम लोग जनता है पाम संडे कौन सी के बारे में है. It's a journey. It was a sacrificial journey जोन जीसस लीस रहा ताकि हम लोग के जोन दाय में परमेश्वर चुका सके. राइट. सो गोइंग बैक टू दैट टिकट स्टोरी, अभी हमें से बताया कि हमें एक फ्री टिकट मिल गई सा, तो हम लोग जाके इंजॉय करा गेम. राइट. और फ्री टिकट में हमारा डेट नाइट भी निकल गई. बट अगर हम लोग उसके रिफ्रेश करेगा, पूरा स्टोरी बताएगा. Somebody called me a day or two before and said, I have a ticket, I bought the ticket, but I won't be able to go, so you can make use of the ticket. तो अगर हम लोग टिकट देखता है हमारे लिए फ्री रहा, but somebody paid the price for the ticket. Somebody actually paid the price. So when we receive something for free, it's actually free for us, but somebody is there who actually goes and pays the price for that stuff. And वही रकम यहाँ पर हम लोग जब salvation के बारे में देखता है और पाम संडे के बारे में देखता है. पाम संडे was a journey for Jesus Christ. He was going to enter Jerusalem, and then he was going to sacrifice his life for you and I, so that he was going to pay the price that we owed. हम लोग जब पाप में डूबारा, हम लोग के उसके जो प्राइस रहा हम लोग के पे करे के रहा. But Jesus took that journey. He went to Jerusalem. He sacrificed himself. He paid the price for you and I. तो जन salvation के बारे में हम लोग जब देखता है, it is free for you and I. टिकट के रकम जैसे हमारे लिए वो फ्री रहा, हमारे स्टेफनी के लिए फ्री रहा, but somebody actually paid the price for the ticket. वही रकम salvation भी है. It is free for us. It is free for you. It is free for me. It is free for everyone sitting here. But Jesus actually paid the price for that. So it wasn't free. Somebody had to go and sacrifice his life. And of course हम लोग जानता है कि जोन चीज sacrifice करे के रहा, जोन लेम के बारे में पहले बताता रहा, it had to be blameless, it had to be pure. Or Jesus himself became that blameless and that pure sacrifice, so that you and I can be set free, so that you and I don't have to pay the price for salvation, हम लोग के छुटकारा के लिए. तो आज के जो वचन है हमारे, उसके टॉपिक जो हम लिया है, उसके टॉपिक है a humble sacrificial journey. जो एक रास्ता जीसस लेके जाता रहा. He knew where he was going. अगर हम लोग बुक ऑफ मार्क देखता है, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 33 और 34 में देखता है, तो यहाँ पर हम लोग के देखे के मिले हैं कि जीसस वाज नॉट एंटरिंग जेरूसलम बाय कोइंसिडेंट. राइट. उसके वहाँ पर जेरूसलम में हालांकि एक ऐसे कोइंसिडेंट नहीं रहा कि वो खाली हुआ चल दिस रहा विदाउट एनी पेपर्स, एंड देन his crucifixion happened and everything, all this situation took place. He entered Jerusalem knowing what was in store for him. और यहाँ पर अगर हम लोग देखेगा, यहाँ पर पढ़ेगा तो Jesus अपन disciples उनके बतावे हैं, listen, he told them, we are going to Jerusalem where Son of Man will be handed over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and then hand him over to the Gentiles, who will make fun of him, spit on him, whip him, and kill him. But 3 days later he will rise to life. तो यहाँ पर Jesus even before entering Jerusalem, उज्जैनी ले से पहले, he knew what he was getting himself into. He knew that he was going to suffer. He knew कि उसके चाबुक से मारा जाए. He knew कि उसके खिल्ली उड़ाया जाए, कांटों के ताज पहनाया जाए. He knew everything, but he was still willing to take that journey because he loved you and I. जैसे हम लोग मैकडोनल्ड्स में पे फूड ला के बारे में जानता है ना, तो I was watching this video and it was a funny video.
नॉट रियली अ रियलिटी वीडियो, तो उसमें दिखाए कि एक पेशेंट जावे अबाउट $12 के मैकडोनल्ड्स खरीदे। तो जब वो जावे मैकडोनल्ड खरीदे तो इसके जो मुआ पे करेला टाइम बताए कि द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू ऑलरेडी पेड फॉर दिस फूड। तो काफ़ी खुशी हुई कि अच्छा उसके जो $12 के उरा somebody paid for it, so he wanted to make the person behind him happy as well। तो केशिया से बताए बोले पीछे लाके भी बोले उसके लिए हम पे करेगा। तो पीछे लाके जो टाइम बिल बताए बोले उसके बिल है $242। तो बोले $242, आई डोंट वांट टू पे दैट। तो देखिए जो उसके बिल बहुत बड़ा रहा, he didn't want to pay that। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब देखता है Jesus knew the bill he had to pay for our salvation। यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ा अभी बोले कि हमें जाए कि वहाँ चीफ प्रीस्ट और जो रूलर्स है उन लोग के हाथ में हमें सौंप दिया जाए। They will mock me, they will whip me, और यहाँ पर सब चीज़ बताया कि कौन सी करा जाए। He knew the bill that he was going to pay for our salvation, and the bill that he had to pay wasn't a small bill, right? अगर हम लोग के कोई उसमें से शायद एक कुछ भी करी या दो कुछ भी करी, that's difficult enough for us to survive। But here he was going to go through a combination of all these prices where they were going to whip him, उसके कांटों के ताज पहनाया जाए, and then the rest, and then in the end he says they will even kill him, but he will raise up on the third day, and that's exactly what happened। So जब हम लोग देखता है जेनी के बारे में तो हम लोग जानता है कि परमेश्वर willingly गई रहा। He knew what he was going through, but he took that journey for you and I। और एक ही कारण ली रहा, when we give something to somebody, it's only because we love that person, right? हम लोग जिसके प्रेम करता है usually we give them gift when it's a special occasion। और यहाँ पर भी जब परमेश्वर तोहफा जब हम लोग के दिसरा, he showed how much he loved us। जैसे John 3:16 में भी वही चीज बता हुए है, and there are many portions in the Bible where it talks about the same thing। It talks about the fact that Jesus took that journey, or he showed his love on the cross for us। जैसे हम लोग देखेगा बुक ऑफ 1 John chapter 4 verse 10 यहाँ पर बता हुए, 1 John chapter 4 verse 10 बताए, this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अभी हम एग्जाम्पल दिया रहा कि we give gifts to somebody who we love more than somebody who loves us। जिसके हम लोग जब हम लोग को एक तोहफा देता है, it shows that we love them। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपन जान हम लोग के लिए सेक्रीफाइस करीस, he showed how much he loved us, and the purpose was because he loved us first, he loved us more। तो जब हम लोग इस जेनी के बारे में देखता है, all that he went through, अभी जैसे हम लोग ईस्टर के सीजन में जाएगा, we will hear stories। कभी कभी हम लोग के सब स्टोरी सुनता है, it seems too common, but actually going through that pain and suffering, he did it just so that we can be set free। हम लोग कभी कभी अपने आप के बहुत हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन जब परमेश्वर उस क्रूस पर हम लोग के लिए अपने जान बलिदान करिस रहा, he not only set us free from the bondage, he gave us salvation, he gave us victory। अगर हम लोग उसके खून के बारे में जो बहाया गया रहा, it was to set us free, it was to cleanse us। वो जब अपन दही तोड़िस रहा, it was so that we can be healed, we can be renewed, we can be refreshed। तो हम लोग के he first set us free, and then he also gave us victory। जाए से पहले बताइए रहा, I give you that authority, I give you the authority that you will be able to do more than what I was already doing on earth। तो हम लोग एक authority दे के गई रहा, so whenever we feel defeated, we are able to use the authority that he has given us।
हम जोन सी परमेश्वर करत रहा, जब हम लोग उसके आत्मा से भरता अपने आप के, जब हम लोग उसके साथ में मिला रहता है, then we will be able to do more than what he was doing, because he has given us that authority, and it is time for us to start practicing those authority. हम लोग के जब दे के गई से, then we need to start practicing in. कभी कभी हम लोग का जैसे कोई कुछ दे है, एक तोहफा दी से, और हम लोग वो तोहफा लेके ले जाके कोना में रख देता है, then we are not using it. उसके जो तोहफा के जो रिजल्ट रहे, it's not there because it has been placed in a corner. जब हम लोग उसके इस्तेमाल करता है तो हम लोग उसके जो फुल लुफ्त है उसके उठा सकता है, उसके हम लोग सकता है फुल एडवांटेज ले. वही रकम परमेश्वर के जो विक्ट्री है, जो सल्वेशन हम लोग के दी से, we are only able to experience the power that he has given us, the victory that he has given us, when we take advantage of it, when we are utilizing the authority that he has given us. And it is and today is the day that we need to remind ourselves that we have the authority of God and we need to start using it. हम लोग जब पाम संडे के बारे में देखता है तो यहाँ पर हम लोग जो बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 1 से 11 मिले हैं, बट आई विल ट्राई टू समराइज दैट. यहाँ पर हम खाली 3 जो वेस है यहाँ पर छुएगा. सबसे पहले हम इसमें से छुएगा जो वेस 2 में मिले हैं. यहाँ पर जीसस बताइस, he knew what going back to chapter 10, he knew what he was going to get himself into. लेकिन यहाँ पर चैप्टर 2 में बतावे हैं अपन डिसाइपल्स लोगों से बोले, go to the village, find an unused colt and bring it here, right? फिर हम लोग अगर उसमें पूरा देखता है तो उसके जो डिसाइपल्स लोग रहे, they obeyed him, they brought the colt and he used that colt as a journey. तो यहाँ पर जो कोल्ट के बारे में दिखाए है, it represents humbleness and it represents peace. तो जो परमेश्वर जेरूसलम में हला रहा, he wasn't जैसे हम लोग जनता है जब घोड़ा लोग यूज करत रहा उस समय में, it was used in cases of war. but यहाँ पर जब जीसस एंटर बेस जेरूसलम में, he went with humbleness और he went with peace. और बुक ऑफ जॉन में भी, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में भी वही चीज बताए कि पीस आई ब्रिंग यू एंड पीस आई लिव यू. जो परमेश्वर है, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस. ही वांट्स टू फिल आवर लाइफ विद पीस. जब हम लोग उसके साथ जुड़ा रहता है, एंड इट्स वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट टू, जब हम लोग उसके साथ जुड़ा रहता है, देन वी विल एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड. हम लोग के लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेफ्ट और राइट में चाहे कुछ भी तूफान आई, वी विल हैव द पीस ऑफ गॉड. बिकॉज हम लोग जानेगा, हम लोग हर वक्त जानता है कि परमेश्वर हम लोग के जो दुख है, मुसीबत है, उसमें से बचा के रखी. ही टेक्स अस थ्रू. जब वो अपने आप के सके बलिदान करे ताकि हम लोग के सल्वेशन मिले सके. सो जो प्रॉब्लम अभी हम लोग के पास है, दैट्स टू स्मॉल फॉर हिम. God has promised to go to any extent, and He has shown that He will go to any extent to set us free, to make us clean, to lift us up. हम लोग के रिन्यू करे के लिए, हम लोग के देखभाल करे के लिए God will go to any extent. तो आज हमारे पास अगर कोई मांग है परमेश्वर से, आज हमारे पास कोई दुख मुसीबत है, अगर हम परमेश्वर के पास लेके जाता है, He is just enough. He's ready to help out. He's ready to stretch his hands out. और फिर हम लोग देखता है चैप्टर 7 में, हम लोग देखता है कि यहाँ पर जब हम लोग कॉल्ट लेके आइस, पीपल जन रहा लोग अपन क्लोक, अपन जन कपड़ा रहा वो निकाल के आगे रख दिस, एनिमल के आगे रख दिस, एनिमल के ऊपर बिछाई दिस. It showed that they were giving royalty to Jesus. They had declared him as the King of Kings. वो लोग परमेश्वर के स्थान दिस वहाँ पर कि he is the King of Kings, he is the Lord of Lords.
बिकॉज जब हम लोग देखता है क्लोक के बारे में, इट वॉज वोन बाय द हाई प्रीस्ट एंड द किंग्स। तो उसके हाई प्रीस्ट के स्थान दिस और किंग के स्थान दिस। आज परमेश्वर के हम लोग कौन सा स्थान देता है? आज हम लोग के लाइफ में ये सवाल हम लोग अपने आप से सकता है पूछे कि प्रभु यीशु मसीह के आज हम लोग कौन से स्थान दिया है अपन लाइफ में। यहाँ पर जितना फॉलोअर्स रहा, जितना जन रहा वहाँ पर, दे हैड गिवन हिम, they had declared him as the king, they had declared him as the chief priest। आज हम लोग के लिए परमेश्वर कौन सी है? and that is what matters। it doesn't matter कि हम लोग के लाइफ में it doesn't matter कि वो people लोग परमेश्वर के कौन सा स्थान दिस रहा। what matters is कि हम लोग परमेश्वर के कौन से स्थान देता है। that is something that defines our relationship with God। यहाँ पर जितना जन रहा उन लोग के रिलेशनशिप परमेश्वर से जोड़ रहा, it doesn't make a difference in our life। what makes a difference is the relationship that we have with God। और फिर हम लोग देखता है कि उन लोग जन पाम लीव्स रहा, उन लोग पाम लीव्स हिला हिला के उसके गाना गात रहा, होजाना होजाना बोलत रहा। होजाना के मतलब हम लोग जिसे जनता है कि Savior, they knew that Jesus was the Savior। और palm leaf हम लोग अगर देखता है ओल्ड टेस्टमेंट में देखता है तो it was a sign of celebration। जब हम लोग कुछ सेलिब्रेट करता था, they used to wave palm leaves। So going back to what I was saying earlier, कि Jesus has given us victory when he sacrificed his life for us, and these people knew that God had that Jesus already had the victory because they knew where Jesus was going। Today, are we spiritually waving the same palm leaves? क्या आज हम लोग जानता है कि जन परमेश्वर है वो विजेता का परमेश्वर है। He has already received victory, and that same victory we have received from him। क्या आज हम लोग जैसे हुआ पर हम लोग देखता रहा इंसान लोग, they were rejoicing, they were happy, they knew that the victory was there। Today the question is, do we know कि हम लोग के भी वही विक्ट्री मिल गई से? क्या आज हम लोग भी वही रकम सेलिब्रेट सकता है करे? यहाँ पर हम लोग देखता है Jesus had not been to the cross at that time। He was just taking that journey। he had not been risen up at that time। and जब विजय रहा, असली विजय उस समय आता है जब Jesus was resurrected। That was the time when the real victory came। but here पर people John Raha, they already started waving their palm leaves, they already started to celebrate because they knew the power of Jesus Christ। आज हम लोग के पास जब दुख मुसीबत रहे, जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर सौंपता है, are we waiting until the end before we can start celebrating? कि हम लोग इस व्यक्ति लोगों के लिए क्या रकम हम लोग आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के we can start celebrating ahead of time, because हम लोग जानता है कि जब परमेश्वर कुछ बोल दी से, कुछ वादा कर ली से, he will fulfill it in our life। तो आज हम यही वचन हम लोग के बीच में छोड़ेगा और सबके इनकरेज करेगा कि परमेश्वर जन टाइम इला जेनी लीस रहा, he knew what he was going to go through, he knew the pain and suffering that he was going to go through, but more than himself, he loved us। He sacrificed his life so that you and I can be set free, we can receive victory। and today we need to start experiencing the same authority, the victory that he has given us, the salvation that he has given us। हम लोग के लाइफ में अगर कुछ टेम्पटेशंस रहे बेर आ जावे, we need to start rebuking those temptations because Christ has given us victory। अगर हम लोग के कोई weakness है and we are repeatedly falling into the same weakness, हम लोग के बेर हम लोग घबराए जाता, बेर डर जाता है, then today is the time we need to fix our relationship with God, we need to fix our relationship with Jesus। because जब वो हम लोग के साथ रही, when we are in union with him, then these temptations, this weakness, these circumstances will appear too small for us because we know that God will take care of it।
तो आज हम यही वचन यहाँ पर छोड़ेगा और डेट के देगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आई लाइक दैट एनालॉजी जो मैकडॉनल्ड्स वाला था, जब उसका बिल आया तो $12 किसी ने पे कर दिया था, जो तो उसने सोचा कि नो I'll do another favor to the guys behind me। जब उसको पता चला $142 हुआ तो बोलता that's too much, but Jesus didn't look at our bill, right? Whatever the bill was, without even looking, he stamped it, he says paid in full, right? And how did he pay it? By sacrificing himself on that cross। और जब प्रभु यीशु मसीह जेरूसलम जा रहा था और उस गधे के ऊपर जो सवारी करता था, when people saw that, they could smell victory, because जो जितने जो Jewish लोग थे, they read about the coming of the Savior, जो उन लोगों को बचाएगा, but they were looking in a different direction। वो लोग सोचते थे कि ये आएगा हम लोग के लिए, वो अपना राज स्थापित करेगा यहाँ पर, the kingdom on the earth, basically about and freeing the Israelites, basically, or the Jewish people, right? Yes, it was part of it, but there was a bigger picture they missed out on। They did smell victory, but they did not understand। वो लोग समझ नहीं सका कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया में आया। वो पूरा दुनिया को बचाने के लिए आया था, सिर्फ उन लोगों को नहीं, पूरा दुनिया को बचाने के लिए आया। हाँ, वो आया उन लोगों के बीच में, लेकिन पूरा दुनिया को बचाने के लिए आया था। And we just want to thank the Lord for what He has done for us। और जो हमें ये वचन दिया है और उसमें से सिखाता है, जिससे कि जो गधे के ऊपर जो सवारी करता, Jesus could have ridden one of those war horses, no, like they were big stallions along, उसके ऊपर सवारी करते थे when they go to war, but no, जब गधे के ऊपर सवारी करते थे, it represented royalty, peace, right? और like परमेश्वर के आशीष इन लोगों के ऊपर, humbleness, right? We look at King Saul. There's so many other places in Bible में लिखा है, but King Saul, he was a great king, right? And he was always riding his horses. But जब उसको crown किया गया था, एक राजा बनाया गया था, the scripture said he rode a donkey, right? और जो donkey है, it's called a beast of burden, right? वो बोझ उठाने के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह वही हम लोग को सिखाया कि जैसे वो गधा बोझ उठाने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बोझ उठाने के लिए आया था इस दुनिया में। हमारा बोझ क्या था? हमारा पाप, right? Our sins, our sickness, our diseases, disappointments, whatever it is, जब हम उसके हाथों में सौंप देते हैं, उसके चरणों में रख देते हैं, and then we say, Lord, you take care of this. He does take care of it. But we don't go back and pick it up and say, no, पता नहीं होगा कि नहीं. No, it is going to happen because the Lord is faithful, और जो उसने कहा वो पूरा होगा. Amen. तो हम एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम अपना सभा खत्म करेंगे. तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय. यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय. तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार. यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय. मैं पाप में डूबा
ऐसा डूबा आँखों में आंसू ने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, मुक्ति लेके प्यार। यीशु तो है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तो है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया के भीड़ में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं गुमराह था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए इस जगह पर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो हमारे बीच में है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई तरसेम के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय तू जानता है उसके मांग को प्रभु, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग के लिए आज यहाँ प्रार्थना करते हैं जो दुखित है, पीड़ित है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते, तू उनको छू ले प्रभु। Father, I pray that you touch them, Lord, in a very special way, O God Almighty. Touch them in Jesus' name. I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness in Jesus' name. Touch them, Lord. Bless them, Lord, as they go out from here, Lord, but they will not go empty-handed, Lord, but be filled with your presence, Lord, with your power, with your passion, O God Almighty. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. हालेलुया। हमारा सभा यही खत्म हुआ, लेकिन हम लोग के जो प्रभु भोज है इस समय हम लेंगे, ये प्राइवेट है हम लोग के चर्च के लिए। तो those that are taking part in communion, please. Hallelujah. Let me just read some